Good morning, dear students. Welcome back to the class. We have studied in the last class the lesson cubes and the cube roots. Now we are continuing this lesson. In the previous class, we have studied the two solved examples. Now we are going for the further, that is third example. We are moving forward. Okay. In the last class, we have studied two examples in which first one we have to check how if the given number is a perfect cube or not. Now we are going for the third example. Okay. Now example number third. What is example number third? Example number third is the volume of a cubical box. The volume of a cubical box. The volume of a cubical box. The volume of a cubical box is 2197 centimeter cube. The volume of a cubical box is 2197 centimeter cube. What is the length of its side? What is the length of its side? What is the length of its साइड? तो अगर आपके पास एक क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम 2197 गिवन है, आपको ये बताना है कि उस क्यूब की साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि जो वॉल्यूम आपका है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, दैट मीन्स आपका जो साइड है वो सेंटीमीटर में आएगा। यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2197 टू फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको गिवन है, आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ cubical box is equals to 2197 centimeter cube. Okay, volume of a cubical box is 2197 centimeter cube. It is given in your question. Now let the side of cubical box be x centimeter. Now let the side of a cubical box be x centimeter. हमने मान लिए है कि जो हमारा cubical box है उसकी साइड जो होगी वो x सेंटीमीटर की होगी। ये कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें ध्यान रखना, जैसे ये जो लेट वाला सेंटेंस होता है, लेट हम लोग जो भी चीज को लेट करते हैं उसके बाद में हम b लिखते हैं, b इट x सेंटीमीटर और b इट a सेंटीमीटर, व्हाटएवर अल्फाबेट यू वांट टू पुट हियर। ओके, बट इन द लास्ट जब हम लोग लास्ट में एग्जाम में हम यही सेम सेंटेंस रिपीट करते हैं बट इस b को हम रिप्लेस करते हैं इज से। जब लास्ट में मैं आंसर लिखूंगी तो आपको मैं बता दूंगी। लेट द साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स बी x सेंटीमीटर। नाउ फाइंड आउट द prime factorization, the prime factors of 2197. What is 2197? Prime factorization. 2197 is not divisible by 2. It is not divisible by 3. It is not divisible by 5. But it is divisible by 7. Okay, it is divisible by 7. Is it divisible by 7? 7 is the 21, 7 is the 7 and 27. No, 27 is not in the 7 cube. तो ये आपके 2 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 से भी नहीं होगा, ये होगा 13 से डिवाइड। ओके, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड 2197 by 13. ओके, and 13. Then what will come here? अगर आप 2197 को 13 से डिवाइड करते हो तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 169. Try to do this prime factorization by itself. अपने आप से करने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन की कोशिश ट्राई करोगे इसको सॉल्व करने का, आपको प्रैक्टिस होते जाएगी। ओके, 2197 13 से डिवाइड करोगे 169 आएगा। अगेन आप 13 से डिवाइड करोगे यहाँ 13 आएगा एंड अगेन आप 13 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ओके, दैट मीन्स 2197 और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम 2197 को क्या लिख सकते हैं? 2197 इज इक्वल्स टू 13 into 13 into 13. 2197 can be written as 13 into 13 into 13. Okay, now volume of
cubical box is equals to 2197. ओके, इज इक्वल्स टू 2197. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे नाम लिखते हुए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स A cube is equals to 2197. Okay, now sorry x जो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड इनटू साइड इनटू साइड. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड इनटू साइड इनटू साइड. इट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ साइड 3 times. But we have considered here the side is x centimeter. Therefore, x into x into x. How many times? 3 times. Okay, x into x into x. What is x into x into x? X cube. And इस वॉल्यूम की हमको वैल्यू क्या दी गई है? 2197. But by prime factorization, you find out 2197 can be written as 13 into 13 into 13. That can be written as 13 into 13 into 13. Okay. Now x cube is equals to 13 cube. Okay. X cube is equals to 13 cube. Correct? इसको हम लिख सकते हैं ना 13 का क्यूब. Now अगर हम दोनों साइड में क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, अगर हम we are applying the cube root on both the sides, right hand side as well as left hand side, then these cube root can get cancelled with this cube and we get x here, and in the right side we get 13 here. That means x is equals to 13 centimeter. And last में हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? Therefore the side of the cubical box is 13 centimeter. देखो मैंने आपको बताया था ना लास्ट में यही वाला सेम आंसर कॉपी करते हैं जो लेट में एज्यूम किया होता है. देखो द साइड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, बस इस b को रिप्लेस करना है इज से, एंड x की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर. ओके, अगर आपको किसी भी क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम दिया है, आपको उसका साइड निकालने बोलेगा, तो आपको इस तरीके से उसे सॉल्व करना है. नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन. दैट मींस नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज योर fourth example. Okay, what is your fourth example? You have to verify the given question. You have to verify the given question. verify मतलब क्या होता है कि चेक करना कि जो गिवन चीजें हैं वो करेक्ट है या नहीं है. You have to check the given value is or the given question statement is true or not. What is the question? Verify 2744. Verify 2744 into 1728 into 17 cube root of 2744 and 1728 is equals to cube root of 2744 into 1728. First of all, find out the prime factorization. By prime factorization, the factorization or prime factors of 2744 and 1728. You have to find the prime factors of 2744 and 1728 first. Find out then. I will write it directly, but you have to find it. Okay? Solution. आपके इस सॉल्यूशन में मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से प्रॉपर उसका सॉल्यूशन लिखना चाहिए. मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ. ओके, 2744. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन है बाय विच मेथड? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, 2744. 2744. What is 2744? 2744 is equals to 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7. 2744 can be written as 2 into 2 into 2, 7 into 7 into 7. That means, and 1728 क्योंकि ये 14 का क्यूब है एंड ये 12 का क्यूब है, जो मुझे क्यूब्स याद है इसलिए मैंने डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ. इसलिए आपको बोला गया कि आपको क्यूब्स याद करने हैं ताकि आप लोगों को भी ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये
चल दिया जाए। ओके 1728 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 and 3 into 3 into 3। आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आपके यही प्राइम फैक्टर्स आने वाले हैं जब आप उनको सॉल्व करोगे। ओके यही प्राइम फैक्टर आने वाले जब आप सॉल्व करोगे। अब उनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई मतलब क्या होता है? वेरीफाई मीन्स you have to find the value of the left hand side as well as you have to find the value of right hand side and match both of them. If they both match, that means the given statement is true, otherwise it is not. Okay, verifying. For the verification, LHS LHS is equals to, what is LHS? LHS is equals to, what is LHS? Cube root of 2744 into 1728। आप सभी लोग ध्यान देना कि मैं सॉल्यूशन कैसे कर रही हूँ। ये सॉल्व एग्जांपल्स है। इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड द एक्सरसाइज। ओके 2744 into 1728। ओके नाउ क्यूब रूट ऑफ, देखो ये जो 2744 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब into 7 क्यूब। लिख सकते हैं 2 क्यूब into 7 क्यूब। दैट मीन्स वी कैन राइट इट हियर इज 2 क्यूब into 7 क्यूब। ओके and this 1728 can be written as 2 cube into 2 cube into 3। कैसे आया ये? देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है, दैट मींस 2 क्यूब। 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स है, मींस 7 क्यूब। दैट देन इसमें 2 3 टाइम्स है, अगेन 2 3 टाइम्स है, देन 3 टाइम्स। देन ये हो गया, ये जो लिखा है आपने ये 2744 के लिए हो गया। एंड देन 1728 के लिए 2 क्यूब into 2 cube into 3। okay 2 cube into 2 cube into 3 cube। now if we apply the properties of the cube roots, these cubes get cancelled and what will remain here? 2 into 7 into 2 into 2 into 3। okay what will come here? 2 into 7 into 2 into 2 into 3। what will be the answer of this multiplication? Find out the answer. Find out the answer. What will be your answer? 168। what will be your answer? 168। okay 168। now RHS, आपका RHS क्या दिया हुआ है? RHS is cube root of 2744 into cube root of 1728। cube root of 1728। what is the value of 2744? 2 cube into 7 cube। okay 2 cube into 7 cube and what is the cube root of what is the value of 1728? it is 2 cube into 2 cube into 3 cube। if we again apply the properties of cube root, it is ये क्यूब से ये क्यूब्स इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 2 into 7। इसमें ये जो क्यूब कैंसिल होंगे इस क्यूब रूट से, तो क्या आएगा? 2 into 3। okay then 2 into 7 into 2 into 2 into 3। what will come here? 168 again। 168 again। आपका देखो LHS भी 168 आया है एंड RHS भी 168 आया है। that means you check it properly and your answers are same। that means LHS is equals to RHS। LHS is equals to RHS। LHS equals to RHS, that means hence verified। LHS equals to RHS आ गया है, that means आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो वेरीफाइड है। that means वो आपको लास्ट में लिखना है hence verified। क्या लिखोगे आप लास्ट में? hence verified। I will try to write here hence verified। सॉल्यूशन समझ में आया? क्या करना है आपको? कभी भी जो एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया था एंड यू हैव टू फाइंड द साइड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्राइम फैक्टर, बाय प्राइम फैक्टर फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट क्यूब। ओके वॉल्यूम, देन द स्टेटमेंट, देन सॉल्यूशन में जो आपको लिखा गया था उसको प्रॉपर्ली आपको वैसे ही लिखना है। और आपने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा तो किसी एक ही वैल्यू का क्यूब आएगा, वो वैल्यू आपका आंसर होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या था? आपको इन दोनों साइड्स को वेरीफाई करना है। LHS वो
RHS के इक्वल है या नहीं है ये बताना था। तो आपने क्या किया, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले आप इन दो वैल्यूज जो क्वेश्चंस में दिख रही है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर्स मिलेंगे। देन यू राइट इट एज फॉलो। देन आपको इसमें ये बताना है कि कितनी क्यूब्स की पेयर बन रही है। तो ये एक 2 क्यूब हो गया, ये एक 7 क्यूब हो गया, ठीक है। देन अगेन ये 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। आपको इसी फॉर्मेट में इसको लिख के रखना है अगर आपको क्यूब रूट्स वेरीफाई करने हैं तो। ये आपका बेसिक हो गया। नाउ अब आप जाएंगे LHS इक्वल्स टू RHS रूट करने में। तो LHS में ये पूरा मल्टीप्लिकेशन एक साथ दिया हुआ था, इसलिए हमने सारे वैल्यूज को एक साथ लिया। देन क्यूब्स रूट से क्यूब्स को कैंसिल किया तो आपका आंसर मिला 168। नाउ RHS में आपको इन दोनों का इंडिविजुअल क्यूब रूट निकालना था। तो जब आपने इसका क्यूब रूट निकाले तो आपको 2 इंटू 7 मिला, और जब इसका क्यूब रूट निकाले तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला। मल्टीप्लिकेशन करोगे अगेन 168 आएगा, तो आपका LHS RHS के इक्वल हो गया। दैट मीन्स आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो वैलिड है। ओके, फॉर द टुडेज लेक्चर दैट्स इट। वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट you have to solve the exercise 4B in your notebook. It is based on the example I solved, and the one more question is there, that is estimation question that you have to solve by itself. Okay, bye.